આગળ વધીએ, વાત કરીએ રામ મંદિર વિશે। રામ મંદિરના શિલાન્યાસ માટે 5મી ઓગસ્ટે પ્રધાનમંત્રી મોદી અયોધ્યા જશે, જે માટે અયોધ્યામાં ચુસ્ત બંદોબસ્ત ગોઠવાયો છે। ડીઆઈજી દીપક કુમારના મતે અયોધ્યામાં 12 સ્થળોએ ખાસ વ્યવસ્થા ગોઠવી દેવાઈ છે, જેમાં પીએમ માટે પ્રોટોકોલ પ્રમાણે વિભિન્ન એજન્સીઓની સુરક્ષાની જવાબદારી સંભાળશે, જ્યારે યુપી પોલીસ તરફથી 12 સ્થળોએ ખાસ વ્યવસ્થા કરાઈ છે। સાથે જ સાધુ સંતો અને સ્થાનિકોને ઉત્સાહમાં ઘરથી બહાર ન નીકળવાની પણ અપીલ કરાઈ છે। સાથે જ વીઆઈપી રૂટ પર પણ ખાસ નજર રખાઈ રહી છે, તો બહારથી આવનારને પાસ વગર પ્રવેશ નહીં મળે, પરંતુ અયોધ્યાવાસીઓ માટે કોઈ પ્રતિબંધ નહીં રહે। મહામારી કોરોના સંદર્ભે ગાઈડલાઈનનું પાલન કરવાનું આવશ્યક રહેશે, જ્યારે દુકાનો ખુલશે, પરંતુ 5 થી વધુ લોકો ઘરની બહાર ન નીકળે તેવી અપીલ કરાશે। 5મી ઓગસ્ટ માટે તૈયારીઓ કરવામાં આવી રહી છે ખાસ પ્રકારની। 5 तारीख को जो भूमि पूजन का ऐतिहासिक समारोह अयोध्या जी में होने जा रहा है, उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के लिए जो प्रोटोकॉल है, उसमें विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के साथ हम लोग समन्वय स्थापित करके उस प्रोटोकॉल के हिसाब से अयोध्या में सुरक्षा उनको दी जा रही है। इसके अतिरिक्त कोविड प्रोटोकॉल का हम लोग सब जगह अनुपालन कर रहे हैं, और कोविड वॉरियर जो हमारे लोग हैं उन्हीं को सुरक्षा में हम लोग जो इर्द गिर्द की सुरक्षा रहेगी उनको लगाएंगे। इसके अलावा शहर में भी कोविड प्रोटोकॉल के अनुपालन के कारण हम लोग शहर में भीड़ नहीं इकट्ठा होने देंगे। 5 से ज़्यादा आदमी कोई इकट्ठा शहर में नहीं हो। शहर की दुकानें खुली रहेगी। 12 जगह पर हम लोग बैरिकेटिंग लगा रहे हैं। अयोध्या के बाहर के नागरिक को उस दिन हम लोग अयोध्या जी में आने से प्रतिबंधित। तो राम मंदिरનું શિલાન્યાસ થવાનું છે, ત્યારે આ ભવ્ય કાર્યક્રમ માટે ગુજરાતના નડિયાદના સંતરામ મંદિરના રામદાસ મહારાજને પણ આમંત્રણ અપાયું છે। जय महाराज, जय श्री राम। मंदिर ने आमंत्रण मळ्યું છે राम मंदिરની ભૂમિ પૂજનનું, એનો અમને ખૂબ આનંદ છે। અમારા મહારાજ શ્રી પૂજ્ય રામદાસજી મહારાજ જ્યારે આંદોલન ચાલતું હતું ત્યારે રાત દિવસ જોયા વગર સભાઓ ગજવતા હતા, પરંતુ અત્યારે મંદિરની પ્રણાલિકા પ્રમાણે તેઓનો ક્ષેત્ર સંન્યાસ છે અને મંદિરની બહાર જઈ શકે એમ નિયમમાં આવતું નથી। એટલે મહારાજશ્રી કહેશે એ સંત પ્રતિનિધિ તરીકે અયોધ્યા ઉપસ્થિત રહેશે, અને અમે સૌ સંતો અને ભક્તો અહીંયા ભૂમિપૂજનના સમયે દિવસે ખૂબ ધામધૂમથી અમારા સંતરામ મહારાજની સમાધિએ થાળ ધરાવીને ઉત્સવ કરીશું। રામ મંદિરના શિલાન્યાસ માટે વિવિધ સ્થળોએથી જળ અને માટીના કુંજ પહોંચી રહ્યા છે। ભૂમિ પૂજન માટે 2 ભાઈઓ પણ 151 નદીઓનું જળ લઈને અયોધ્યા પહોંચ્યા। બંને ભાઈઓની ઉંમર 70 વર્ષથી વધુ છે। બંને ભાઈઓને ભગવાન રામ પ્રત્યે અપાર આસ્થા છે। તેઓ ભારતથી લઈને શ્રીલંકા સુધી રામ સાથે જોડાયેલા તમામ સ્થળોએ ગયા અને ત્યાંથી જળ અને માટી એકઠી કરીને લઈ આવ્યા છે। श्री राम जन्मभूमि विजय प्रदम, मेरी जीवन की प्रथम यही कल्पना थी कि जब भी श्री राम का मंदिर बनेगा तो मैं संपूर्ण भारत के और लंका के मिट्टी और पवित्र जल को दूंगा, और आज भगवान श्री राम की कृपा से वो हमारी कल्पना साकार हुई। मैं भगवान राम का पहले 2-1 छंद से उनका अभिवादन करता हूँ कि प्रातः प्रणाम प्रभु पद पंकज, प्यार पिपास प्रयाग परोसा, पुण्य पुराण प्रभाष परे, परिणाम पगे प्रभुता परितोषा, पंथ पुनीत परापकरा, परिधान प्रमेय प्रयोग पीयूषा, पंग पतिंग प्रसंग पभारत, पेली पला पकवान प्रदोषा, पंग पतिंग प्रसंग पभारत, पेली पला पकवान प्रदोषा। અયોધ્યાનો બદલાઈ રહ્યો છે નજારો। અયોધ્યામાં આશ્રમ અને અખાડાની સજાવટ થઈ ચૂકી છે। એટલું જ નહીં, શિલાન્યાસની ખુશીમાં અયોધ્યાવાસીઓએ 4 રસ્તા પરના મંદિરોમાં ભજનોની ગૂંજ અત્યારથી જ શરૂ કરી દીધી છે। करहूँ एक मुख कहा प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। तो हम एक
अपने एक तुच्छ मुँह से किसी प्रकार के वर्णन नहीं कर सकते हैं कि कितनी प्रसन्नता हो रही है। हरि गुण गाहा गावते नर पावन भवता कलयुग योग अज्ञ ज्ञाना एक आदर राम गुण गाना। 5 ઓગસ્ટના રોજ રામ મંદિરના શિલાન્યાસ માટે અયોધ્યા સંપૂર્ણપણે સજીને તૈયાર છે. રામનગરીનું રૂપરંગ બદલાઈ ગયું છે. અખાડા આશ્રમ સજવા લાગ્યા છે. નંદીગ્રામ ખાતેના રામ જાનકી મંદિર સહિત દરેક 4 રસ્તા પર આવેલા મંદિરોમાં સંકીર્તનની ગૂંજ સંભળાઈ રહી છે. શિલાન્યાસ પછી પ્રસાદ વિતરણ માટે રામ જન્મભૂમિ તીર્થ ક્ષેત્ર ટ્રસ્ટના અધ્યક્ષ મહંત નૃત્ય ગોપાલદાસના આશ્રમમાં લાડુ તૈયાર કરાઈ રહ્યા છે. હનુમાનગઢી 4 રસ્તાથી રામ જન્મભૂમિ તરફ જતા માર્ગ અને તેના ફૂટપાથને ચિત્રો અને પ્રવેશ દ્વારોથી સજાવાઈ રહ્યા છે. રામ કી પૌડી પણ રંગબેરંગી રોશનીથી ચમકી રહી છે. અયોધ્યામાં ધાર્મિકતાની સાથે જ પ્રથમ સ્વતંત્રતા સેનાની મંગલ પાંડે અને અશફાક ઉલ્લા ખાનના બલિદાનનો એક રંગ પણ ભળ્યો છે. મંગલ પાંડે અને અશફાક ઉલ્લા અહીંના જ હતા. પહેલા બંનેને ફાંસી થઈ અને પછી અંગ્રેજોએ તેમના પરિવારજનોને તોપની આગળ બાંધીને ઉડાવી દીધા હતા. શહેરમાંના લેખક યતીન્દ્ર મિશ્રના મતે બલિદાનનો આ રંગ શહેરના વર્તમાનને વધુ વૈભવશાળી બનાવે છે. 5 ઓગસ્ટના શિલાન્યાસ સમારોહ માટે વિશાળ જર્મન હેંગર મંડપ તૈયાર થઈ ચૂક્યો છે, જે અતિથિઓને આંધી પાણીથી બચાવશે. પ્રધાનમંત્રી મોદી આમંત્રિત અતિથિઓ સાથે આ મંડપમાં જ બેસશે. અહીં તેમના માટે અલગથી આસન બનાવવામાં આવશે. આ આસન જન્મભૂમિ સ્થળના એ જ સ્થાન પર હશે જ્યાં મંદિરનું ગર્ભગૃહ બનશે. અહીં 11 પૂજારીની સાથે આચાર્યોની ટીમ હશે. પીએમનું આસન એવી રીતે બનાવાશે કે તેમનો ચહેરો પૂર્વ દિશા તરફ રહે. અહીંથી તેઓ અતિથિઓ અને ધર્માચાર્યોને પણ સંબોધિત કરશે. તેને સુંદરતાથી સજાવવાની સાથે લાઇટ, કેમેરા અને સુરક્ષાના ધોરણોને ધ્યાનમાં રાખીને ટીમ દિવસ રાત મહેનત કરી રહી છે. તો અયોધ્યામાં અત્યારે હાલ લોકોમાં ઘણો જ આનંદ ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. સંવાદદાતા રાજીવ અમારી સાથે જોડાઈ ગયા છે. તેમની પાસેથી जानकारी મેળવીશું કે અત્યારે હાલ કેવો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. राजीव, उस ऐतिहासिक पल को बस अब कुछ ही समय बाकी रह गया है, क्या नजारा देखने को मिल रहा है, कैसा है वहां का माहौल? देखिए, यकीनन जिस दिन का एक लंबे समय से सदियों से इंतजार किया जा रहा था वो दिन आ चुका है और अब आने वाले 5 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जन्मस्थली पर पहुंचकर भव्य राम मंदिर निर्माण का शिला पूजन करेंगे, शिलान्यास का पूजन करेंगे. उसके मद्देनजर अयोध्या में बड़े स्तर पर तैयारियां की गई हैं. तैयारियां जो है वो अंतिम चरण में है और जगह जगह अयोध्या में इस समय उत्सव मनाया जा रहा है, जश्न मनाया जा रहा है. पूरी अयोध्या इन दिनों राम के रंग में रंगी हुई है. अब से कुछ देर पहले जो शिलान्यास पूजन की पूजा अर्चना का क्रम है वो शुरू हो गया है. आज सबसे पहले गौरी गणेश की पूजा अर्चना की गई है और उसके बाद अब आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की कुल देवी बड़ी देवकाली के मंदिर परिसर में खड़ा हूं, जहां पर श्री राम तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य अयोध्या के राजा बिमलेंद्र मोहन द्वारा पूजा अर्चना की जा रही है. तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो राम मंदिर शिलान्यास के पूजा अर्चना क्रम का जो क्रम है वो शुरू हो चुका है और अब से कुछ देर बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अयोध्या पहुंचने वाले हैं और अब तक जो राम मंदिर शिलान्यास की तैयारियां की गई हैं उनकी वो समीक्षा करेंगे और आवश्यक दिशा निर्देश देंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को करीब 11 बजे अयोध्या पहुंचेंगे और सबसे पहले वो अयोध्या की हनुमानगढ़ी पहुंचकर हनुमान जी का दर्शन पूजन करेंगे और उसके बाद 12:30 से 12:40 के बीच जो अभिजीत मुहूर्त है उस दौरान वो भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए भगवान राम मंदिर के शिलान्यास पूजन करेंगे. तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस आयोजन की तैयारियां हैं वो बड़े स्तर पर की जा रही हैं. पूरी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया है. अयोध्या इन दिनों भव्य और दिव्य नजर आ रही है और भारी संख्या में, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम हस्तियां उस वक्त मौके पर मौजूद रहेंगी जो राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हैं, जो संत हैं, जो नेता हैं या जिन लोगों ने बलिदान दिया है उन तमाम लोगों के मौजूदगी उस वक्त रहेगी. तो इस दौरान अयोध्या में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है और जो आने वाले हाईवेज हैं उन पर भी जगह जगह चेकिंग की जा रही है. तो राजीव, जिस प्रकार से आप बता रहे हो कि बहुत बढ़िया तैयारियां अब तक करने में आ रही है वहां पे, क्योंकि बस अब कुछ ही समय बच गया है. सुरक्षा की अगर बात की जाए तो उस दिन के लिए क्या खास सुरक्षा व्यवस्था की गई है, उसके बारे में भी विस्तार से बताइएगा.
देखिए, अयोध्या पहले से ही अतिसंवेदनशील रही है और अभी बीते दिनों आईबी द्वारा भी अयोध्या में आतंकी इनपुट के चलते हाई अलर्ट जारी किया गया है, जिसके मद्देनजर भारी संख्या में पुलिस व केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्योंकि खुद अयोध्या पहुंचकर वो राम मंदिर पूजन करेंगे, उनकी शिलान्यास पूजन कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। ऐसे में प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर भी पूरी तरह से अयोध्या को सीज कर दिया गया, हाई अलर्ट किया गया है। करीब बड़े आला अधिकारियों की तैनाती की गई है। एक एडीजी स्तर के अधिकारी, 2 डीआईजी व करीब 11 एसपी रैंक के अधिकारियों को तैनात किया गया है और करीब 3500 पुलिस कर्मियों के साथ 30 से 35 कंपनी पुलिस पीएसी की भी तैनाती की गई है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा और इस जो भूमि पूजन शिलान्यास पूजन है उसके मद्देनजर अयोध्या में भारी संख्या में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। एसपीजी कल शाम से ही अयोध्या में पहुंच चुकी है। उसने प्रधानमंत्री जिस रूट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे उसको पूरी तरह से सीज कर दिया है, उसको लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और यह सुनिश्चित किया जा रहा है क्योंकि इस दौरान प्रियंका कोविड-19 का संकट भी है, संक्रमण भी है। तो प्रशासन द्वारा इस बात का भी ख्याल रखा जा रहा है कि जो राम मंदिर का शिलान्यास पूजन हो उस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग को भी पालन कराया जाए। और यही कारण है कि जो अब तक ये संभावना जताई जा रही थी कि शिलान्यास पूजन में करीब 200 से अधिक लोग शामिल हो सकते हैं, उनकी सूची को भी छोटा किया जा रहा है, शॉर्ट किया जा रहा है। ये कोशिश की जा रही है कि कम से कम लोग इस शिलान्यास पूजन में पहुंचे ताकि कोरोना संक्रमण का शिकार ना हो। तो कुल मिलाकर जो तमाम तैयारियां हैं वो अब अंतिम दौर में है और खुद अब से कुछ देर बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचकर इन तैयारियों का जायजा लेंगे। राजीव, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस सारी जानकारी के लिए। तो अयोध्याમાં ચાપતો બંદોબસ્ત ગોઠવી દેવામાં આવ્યો છે। કોરોના સંક્રમણને લઈને પણ ખાસ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી રહી છે।